Okay, everyone. So let's start the topic. Okay, so in the first lecture, that was an introductory lecture. I've given some introduction about the memories. So now there are two types of memories, specifically is the ROM and the RAM. Okay, so they are specific. They are basically identified as a read write and only write. Only write. Okay. So, but in the ROM family also there are some memories which can be erased or can be rewritten, but their rewriting phenomenon is it takes very less. Okay, so their writing to reading ratio is very less. Okay, so what we are going to start is the this row. Okay, so we will talk about the ROM. So the same. So this is the classification of ROM. Okay, the read-only memories. So this is called the mask ROM, and this mask ROM is also called as a ROM only. Okay, sometimes if we talk simple ROM and the mask ROM, they are the same thing. Okay. Then we have another class, the programmable ROM. So here the possibility of programming is possible, while in the first one the programming is not possible. Once it is written, it is fixed. While in the second one, the programmability of the ROM is possible. In the second is the erasable PROM, means we can erase the data and program it again. Okay, so there is one more dimension added, that we can erase and program it, erase and program. Then we have ultraviolet EPROM, मीन्स अगर आप इसको जो पहले वाला यहाँ पर हमने लिखा थर्ड वन, इसको अगर मिलाकर पढ़ें, so this is EPROM. Okay, so then we have ultraviolet EPROM. So by using some ultraviolet light we can erase the data written in this. Okay, and we can also by using this ultraviolet rays we can perform the erasing of the data. And then we have electrically erasable. So then we improved upon and we got a electrically erasable is also possible. Okay, so these are the different types of the ROM. Okay, you can say that if we move from left to right in this direction, there is an advancement in the ROM. Okay, so this arrow also shows the advancement of the ROM. So basically this is the ROM. Okay, the family of ROM. Okay, so let's study a basic description of each, then we'll see each and every one in detail. The mask ROM is a type in which the data are permanently stored in the memory during the manufacturing process. Okay, so whenever we manufacture, we store the data permanently and it cannot be changed anytime. Okay, once written is always there. Okay, so there is no possibility of rewriting the data. Then we came to the, okay, so you can say the ROM initially, or the definition of the ROM was where the data cannot be erased. Okay, so initially read-only memory means there is no possibility of writing. So you can see the initial name of the ROM come from this type of memory where the data is written permanently stored in the memory during the manufacturing process. Okay, so this is from here the basics of ROM comes. Okay, but over the advancement in technology, so what became a new type of ROMs are also there. The programmable ROM is the type in which the data are electrically stored by the user with the aid of specialized equipment. Okay, so एक तरीके से इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग कर दे रहे हैं या उसे हम इसे राइट कर दे रहे हैं. So उसमें यहाँ पर क्या एक नई चीज ऐड हो गई है. ओके, ये तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट है कि हार्ड वायर्ड कर दिया, एकदम वायर कनेक्शन लगा दिए एकदम. और प्रोग्रामेबल ROM में क्या है, इज द टाइप इन विच द डेटा आर इलेक्ट्रिकली स्टोर्ड. Okay, so we can store the data. So electrical means in this programmable ROMs. Okay, तो equipment थोड़ा इसमें advanced हो जाता है. So we use some advanced equipment in this, in the PROMs. We'll see all those. आप थोड़ी डिटेल में देखेंगे कैसे करते हैं. Both the mask ROM and the PROM can be either MOS or bipolar technology.
रोम और पी रोम दोनों माउस और BAT हो सकती हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर एडवांस मेमोरीज हैं दे यूज मॉस ओनली। द EPROM और इरेजेबल PROM, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो PROM थी, यहाँ पर क्या है, उसको इलेक्ट्रिकली राइट किया जा रहा था डेटा को, लेकिन एक EPROM आई, उसका एडवांसमेंट है कि उसमें, लेकिन ये PROM में जो था, PROM में इरेजिंग की कोई ऑप्शन नहीं था कि आपने डेटा लिख दिया आप उसे इरेज कर सकते नहीं। अभी हमारे पास एक और नया उससे एडवांसमेंट हुआ, वी रीच टू इरेजेबल PROM, हियर वी कैन इरेज द written data as well. So EPROM first of all is strictly MOS ROM, ठीक है, ये बात याद रखिए। EPROM जो है वो strictly MOS ROM है, और यहाँ पर क्या है, erasing of the data is also possible. Then the another type is the ultraviolet EPROM, okay, is electrically programmable by the user। क्योंकि EPROM की आप सिंपली बात करें तो EPROM क्या है हमारी, PROM जो है वो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल है, ठीक है। ई में ई जो लग गया वो क्या बता रहा है कि इरेजेबल भी है, बट द स्टोर डेटा मस्ट बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मिनट्स, ठीक है। तो इसमें लेकिन इरेजिंग जो हम डेटा की करते हैं वो कैसे करते हैं, वी इरेज द डेटा बाय एक्सपोजिंग द रोम इन द ultraviolet to the ultraviolet light for some amount of time, okay, then the data written will be erased. Then we have another advancement, the electrically erasable। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज अरेंज करना और ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क है। Then we invented the advancement came of electrically erasing capability came, and now we can erase the data and program the data both electrically, okay, and it takes just few milliseconds. So the data can be changed in just few milliseconds. So now you can say that the UV EPROMs are almost obsolete and are mostly used. The mostly used ROMs are EEPROMs, electrically erasable, programmable read-only memory. Okay, so we'll see how all these works. Okay, so these are the basic description and the classification of this. Then comes the mask ROM, the first one. So the mask ROM is usually referred to as a simply ROM. इसे हम simply ROM भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। It is permanently programmed during the manufacturing process. Okay, so जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी टाइम ही हम इसे परमानेंटली प्रोग्राम कर देते हैं। जहाँ भी कनेक्शन बनाने होते हैं वहाँ कनेक्शन बना देते हैं, जहाँ पर कनेक्शन नहीं बनाने होते वहाँ पर कनेक्शन को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही हो जाता है, ठीक है। जब हम डिवाइस को बना रहे हैं उसी वक्त ये हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ओके, टू प्रोवाइड वाइडली यूज स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए, एक कैलकुलेटर का अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेटर के अंदर जो है वो प्रोग्राम फिक्स होता है, आप बस नंबर डालते हो और उसका वो कैलकुलेशन करके आपको दे देता है, लेकिन वो कैसे काम करता है इंटरनली वो हमेशा फिक्स होता है। वो उसको आप एक रूम पर बना के रख दीजिए, अब आप उसको किसी में भी लगा लीजिए, ठीक है। आप उसको उसके कैलकुलेटर फंक्शन कोई चेंज होने वाला नहीं है, जो फंक्शन सामने दे रखे हैं और रूम में ऊपर लिख रखा है उस पर सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप ऐसे कर सकते हैं। और भी हमारे जहाँ पर भी हम कई बार कंप्यूटर सिस्टम्स का फर्मवेयर इंस्टॉल करते हैं जहाँ जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने होते हैं, कभी मोबाइल में भी फर्मवेयर होता है जो जिसमें कभी चेंजेस नहीं होने होते हैं, सो वो हमेशा स्टोर्ड रोम में रहता है कि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ही इसको ऐसा कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें बाद में कोई प्रोग्रामिंग नहीं करने होते, जब हम डिवाइस को फैब्रिकेट कर रहे हैं बना रहे हैं उसी वक्त ही ये सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं, ओके। सो ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं इनको, क्योंकि आप देख लिया आप किसी को बनाते वक्त ही फिक्स कर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक काम के लिए हो जाते हैं, हमें जिस काम के लिए इसको चाहिए हम उस काम को वैसे ही इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग पहले से ही उसको वैसे ही बनवा लेते हैं। Once the memory is programmed, अच्छा ओके, सो द प्रोग्राम इज बाय ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। इसकी प्रोग्रामिंग कब होती है, जब उसको बनाते हैं तभी उसको हम प्रोग्राम बोल देते हैं, ये प्रोग्रामिंग हो गई है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके।
ओके, सो ये बात कि मोस्ट आईसी रोम्स यूटिलाइज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्शन एट अ रो कॉलम जंक्शन टू रिप्रेजेंट अ 1 और अ 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये असल में सारा जो है ये रोम का फंडामेंटल ही है ये। ठीक है, तो ये जो है ये फंडामेंटल है रोम का कि आईसी रोम जो अभी हम बनाते हैं, क्योंकि आईसी फॉर्म में मेमोरीज आती हैं। ठीक है, सो हम जब भी बनाते हैं, सो यूटिलाइज द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस, या तो ट्रांजिस्टर प्रेजेंट होगा या एब्सेंस होगा, एब्सेंट होगा। तो कहाँ पर? एट अ रो कॉलम जंक्शन, रो कॉलम जंक्शन पर टू रिप्रेजेंट अ 1 और अ 0। ठीक है, ये बात आपको उतनी शायद नहीं समझ में आ रही है, आप थोड़ा यहाँ नीचे डायग्राम देखिए। तो ये रोम सेल्स बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, सो इस फॉर्म में shows these are two are the रोम सेल्स। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको ट्रांजिस्टर के बारे में ये मॉस के बारे में आप लोगों से पहले भी बात हो चुकी है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड मॉस बेटर। ओके, सो सिंपली मैंने आपको जो मॉस का काम बताया था वो सिर्फ इतना बताया था, अगर हम मॉस को एज अ स्विच यूज करते हैं कि अगर हम गेट पर वोल्टेज अप्लाई करें, ठीक है, और ड्रेन पर जो भी, तो ये क्या करता है, ये ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, एज अ स्विच काम करता है डिपेंडिंग ऑन द गेट वोल्टेज। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। ठीक है, तो MOS वर्क्स एज अ स्विच डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज ऑफ गेट। ठीक है, so the switch is connected or closed depends on the voltage of gate. If gate voltage is high for the NMOS we are talking, so ये देखिए NMOS ही है, क्योंकि इसमें क्या बॉडी का एरो अंदर की तरफ जा रहा है, so it is an NMOS. Okay, so this is also an NMOS. तो जब ये गेट का वोल्टेज हाई है, तो मैंने आपको बताया कि क्या करता है, ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट कर देता है। सो ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट कर देगा तो क्या होगा, ड्रेन हाई पर VDD का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, सो VDD क्या है, सप्लाई वोल्टेज होता है जो। ठीक है, सो VDD को एक सोर्स से कनेक्ट करते मीन सोर्स विल रीच टू द हाई वोल्टेज। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ये हाई वोल्टेज पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है, इसे कॉलम बोलते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर कनेक्ट होते हैं। ये देख सिर्फ एक सेल दिखाई गई है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर कनेक्ट करके एक पूरी मेमोरी बनाई जाती है। तो ये क्या करेगा, इस वर्टिकल लाइन को हाई से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ द गेट वोल्टेज इज 0, so what will happen, if the gate voltage is 0, what will happen, these 2 points will not be, source and drain will not be connected and this voltage will not be high. Okay, so this column will be at low level. Okay, so this is how it works. ठीक है, ये तो आपको मैंने एज अ MOS एज अ स्विच याद दिला दिया। Okay, the presence or absence of connection from a row line to the gate of a transistor represent a 1 at that connection location, because when the row line is taken high, okay, so ये 1 कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन 1 है और ये वाला कनेक्शन 0 है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि क्या है, गेट इससे कनेक्टेड नहीं है। ओके, गेट यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो ये 0 है, और ये यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है रो लाइन हाई है या रो लाइन लो है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि रो लाइन हाई है या रो लाइन लो है। ओके, सो इफ द रो लाइन इज हाई, तो क्या होगा, जैसे ये रो लाइन हाई होगी तो इसको क्या कर देगा, ये इसको गेट को ऑन कर देगा और दिस विल कनेक्टेड टू इट। अदरवाइज अगर ये रो लाइन हाई नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इट मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट रो। इसमें ऐसी बहुत सारी रोज होंगी। ठीक है, आपको अगर एक आइडिया होगा मेमोरी का, ठीक है, कि जैसे कि मैं जस्ट एक रफ और भी आइडिया आपको दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए मैट्रिक्स से आपको आइडिया दे देता हूँ। मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे, मैट्रिक्स में आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स में यहाँ पर सपोज बहुत सारे एलिमेंट में ऐसे 1 1 लिख दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, मुझे पता आप नहीं आ रहा है, मैट्रिक्स में आपको आइडिया दे रहा हूँ कि शायद आगे आए, लेकिन मैं आपको मैट्रिक्स से आइडिया देता हूँ, आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा मैट्रिक्स से। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर क्या है, ये 0 है। ठीक है, ये 1 है, 1 है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी फिर से आ जाइए, यहाँ पर 1 है, 2 3 4 1। ओके, ऐसे मैट्रिक्स के एलिमेंट ऐसे ही होते हैं।
तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को अगर हमें स्पेसिफाई करना होता है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव द टेल इट्स द रो नंबर एंड द कॉलम नंबर। अगर हम सपोज इस 2 को रीड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बताना होगा इसकी रो क्या है, रो इज 2 एंड द कॉलम इज ऑल्सो 2। तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस हो जाएगा 2, 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अगर हमें 3 को रीड करना है तो इसका एड्रेस क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2, 3, इसका ये एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय यूजिंग अ कोऑर्डिनेट वी कैन फाइंड दैट पॉइंट। तो यहाँ पर मेमोरी में भी यही होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होंगे हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होंगे और डिपेंडिंग ऑन की जो 1 है वो उसको कनेक्ट कर रहा होगा और जो 0 है वो उसको कनेक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो रो के डेटा को कॉलम पर प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। मीन्स के अगर हमें जिसकी जरूरत नहीं है तो हम उसे 0 कर देंगे और जिसकी हमें जरूरत है उसे हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, so the presence of a connection from a row line to the gate of a transistor represents a 1 at that location। ठीक है, अगर ये ऐसा कनेक्शन यहाँ पर बना रखा है हमने, रो टू यहाँ पर बना रखा है, तो ये क्या है कि यहाँ पर एक 1 है। Because when the row line is taken high, all the transistor with a gate connection to that row line will turn on and connect the high one to the association column line। ठीक है, अभी मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा एक आध फिगर, जिससे कि आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे कि अगर हमने किसी ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, ठीक है, सो इफ वी सप्लाई 1 हेयर, सो दिस रो विल बी एक्टिवेटेड। ओके, दिस रो विल बी, सपोज रो 0 पे हमने 1 सप्लाई कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि जिस पर 1 है वही ट्रांजिस्टर ऑन होगा, यानी कि उस कॉलम पर डेटा जाएगा। ठीक है, और जिस पर 0 है तो उस वो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 भी एक्टिवेट हो रखे, 3 भी एक्टिवेट होंगे, तो अकॉर्डिंगली हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारा इसका पर्पस है। ठीक है, सो okay, at row column junctions where there are no gate connections, the column lines remain low। जहाँ पर गेट कनेक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई गेट कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये कॉलम लाइन हमेशा लो रहेगी। when the row is addressed, जब भी हम इस रो की बात करेंगे, सपोज अगर एक रो में हम ये दोनों ट्रांजिस्टर एक ही रो में लगा देते हैं सपोज, ठीक है, ये एक ही रो है, ठीक है, और हम रो पर हाई अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर इस रो पर हाई अप्लाई करेंगे तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर क्या करेगा, इस कॉलम लाइन को हाई कर देगा, इस कॉलम लाइन को 1 कर देगा सपोज। लेकिन इस ट्रांजिस्टर की जो कनेक्शन है नहीं, तो हाई अप्लाई करने पर भी ये इसको क्या कनेक्शन नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर क्या 0 ही रहेगा। ठीक है, सो ये हम इसको ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं, किसको हाई रखना है किसको लो रखना है, अकॉर्डिंगली ये तो उतने ही ट्रांजिस्टर्स में काम करेंगे। बट वी मेक एवरीथिंग एज प्रोग्राम पॉसिबल ऑफ प्रोग्रामिंग। आई होप देयर इज नो, सो यहाँ पर एक सिंपली दिखाया गया है कि सो लेट्स रीड दिस। आपको ये थोड़ा और अच्छे से हेल्प कर देगा क्योंकि इसमें सारी चीजों का इंडिविजुअल एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, सो जो फिगर के भी नीचे दिखाया उसकी बात करना है। द ब्लू स्क्वायर्स जो दिखाएगा ब्लू कलर में, रिप्रेजेंट स्टोर्ड 1। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्लू स्क्वायर क्या दिखा रहे हैं, 1 दिखा रहे हैं। एंड द ग्रे स्क्वायर रिप्रेजेंट स्टोर्ड 0। तो ग्रे, अगर ग्रे है कोई स्क्वायर तो मतलब वो 0 है। द बेसिक रीड ऑपरेशन इज एज फॉलोज। तो रीड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, when a binary address code is applied to the address input lines, ठीक है, the corresponding row line goes high। ठीक है, the corresponding rows line, इससे पहले हम इसको थोड़ा और डिटेल पढ़े, मैं इससे पहले आपको थोड़ी एड्रेसिंग समझा देता हूँ। आई होप कि आप लोग माइक्रोप्रोसेसर पढ़ रहे होंगे, तो आप देखिए कि यहाँ पर एड्रेस इनपुट लाइन कितनी है। ये हमें ये एड्रेस इनपुट लाइन हमें ये बता रही है कि हम कितने लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं।
जब इनपुट पर कितनी एड्रेस लाइंस हैं, इनकी 1248 क्यों लिखा हुआ है ये मत देखिए, ये इनके वेट्स लिखे हुए हैं। इनफैक्ट आप ये देखिए कितनी लाइंस है, 1 लाइन, 2, 3, 4 लाइंस, ठीक है, ये 4 लाइंस हैं। सो इनके टोटल हम कितने एड्रेस कर सकते हैं, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं, 4 बिट की पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 2 to the power 4, so we have total 16 locations. So by using these 4 lines we can address the 16 locations. If we have a 8-bit address line, so we can address 2 to the power 8, which is equivalent to 256 address locations. If we have 10 lines, address lines, we can have 1024 यहाँ लिख दो, बहुत नीचे चला गया, 1024 लोकेशन। सो यहाँ पर 5 लोकेशन, 4 लाइन्स, 4 बिट दिखाई गई हैं, तो बाय यूजिंग 4 बिट्स वी कैन एड्रेस द 16 लाइन्स। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन कि हम किस रो का डेटा रीड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमें इससे तो मेमोरी से हमें ये क्या एड्रेस लाइन पता चली, मेमोरी किस टाइप की है भी थोड़ा, सॉरी, ठीक है। सो ये तो सिर्फ क्या है, एड्रेस इनपुट लाइन है जो ये बताएगी कि मेमोरी में कितने हम लोकेशंस हैं। तो मतलब ये है कि इस मेमोरी में कितनी लोकेशंस हैं, 4 लाइन्स हैं, सो इसमें टोटल 16 लोकेशंस हो गई, ठीक है। अच्छा, 16 लोकेशंस हो गई हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि ईच वर्ड कितने साइज का है। तो हर एवरी लोकेशन पर जो डेटा स्टोर है उसका साइज क्या है। सो एवरी लोकेशन पे जो डेटा स्टोर है उसका साइज यहाँ से पता चलेगा, वर्टिकल लाइंस कितनी है, ठीक है। सो ये वर्टिकल लाइंस कितनी है, तो ये देखिए 0 to 7 टोटल 8 वर्टिकल लाइंस हैं। इट मींस द ईच वर्ड साइज इज 8। ओके, सो एवरी लोकेशन पर क्या 8 वर्ड 8 बिट स्टोर है, यहाँ पर भी 8 बिट स्टोर है, यहाँ पर भी 8 बिट स्टोर है। सो एवरी लोकेशन स्टोर्स द 8 बिट। ओके, तो ये एक मेमोरी की पूरी बात हो गई कि कितने वर्ड साइज क्या है मेमोरी का, कितनी एड्रेसेस हैं उसके, ठीक है। सो एड्रेस एक डिफरेंट थिंग है, और उसका मेमोरी का स्टोरिंग बिट्स कितने बिट स्टोर कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब बात आती है कि हम कौन सा किसमें स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे कि ऊपर बात हो गई है कि ब्लू ट्रांजिस्टर जो है, ब्लू सेल जो है, ब्लू कलर की सेल जो है, ये स्टोरिंग 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 स्टोर कर रहा है। और जो ग्रे कलर की सेल है ये क्या दिखा रही है, ये सेल, दिस सेल इज स्टोरिंग 0। ओके, सो अब आप देखिए कि सपोज मैं, अब देखिए हम एक बार में एक ही क्योंकि एक बार में एक ही डेटा हम एड्रेस करेंगे। ये सिक्वेंशियल होता है, कभी हमें एक डेटा चाहिए, कभी हमें दूसरा डेटा चाहिए, ठीक है। तो कभी इस लोकेशन, कभी सपोज हो सकता है लोकेशन 1 का डेटा चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट ऑपरेशन में इसका डेटा चाहिए हो, तो ये टाइमिंग साइकिल से डिसाइड होता है। तो पहले इसका डेटा को एक्सेस करेंगे, देन बाय आफ्टर सम टाइम वील एक्सेस द डेटा ऑफ द सेकंड लोकेशन, देन लाइक दिस हमें जो भी जिस भी लोकेशन का डेटा चाहिए वी कैन एक्सेस इट। सो अब ये कैसे फिक्स्ड है ये देख लीजिए आप। सो फर्स्ट रो की क्या सिचुएशन है, फर्स्ट रो की पोजीशन ये है, जो दिखाए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, 3 तो 5 ट्रांजिस्टर सबके दिखाए गए हैं। सो क्या है कि फर्स्ट 3 जो है वो ग्रे कलर के हैं, मीन्स यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर डेटा होगा ऐसा 0 0 0, ठीक है, और जो बीच में जो भी हो, और फिर यहाँ पर ये 1 और ये 0, तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो ये डेटा स्टोर होगा, ठीक है। सिमिलरली इस फर्स्ट लोकेशन वाली बिट को देखें तो यहाँ पर 1, सॉरी ये भी 0 है, 0 0 0 1 1, तो यहाँ पर डेटा रो 1 ऐसा डेटा स्टोर है, ठीक है। तो हम जिस भी रो को एक्टिवेट करना चाहते हैं, सपोज हम 1 को हीट करना चाहते हैं, तो हम 1 को इस पर डिकोडर जब इसको डिकोड करेगा कि 1 एक्टिवेट होना है, तो 1 पर हाई सिग्नल अप्लाई करेगा, ठीक है। सो 1 की क्या है, ये रो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, ये 1 की ये रो एक्टिवेट हो जाएगी, और जैसे ही 1 की रो एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या होगा,
वो जो लिखा हुआ था, जो कनेक्शन था, दैट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू दिस लाइन। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम लाइन पर डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार में एक ही डेटा हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, और फिर इसका भी वन का डेटा अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर कनेक्शन वाला था तो यहाँ पर कि जैसे ही हाई अप्लाई करेंगे तो वो कनेक्शन हाई हो जाएगा और क्या करेगा, इसको कॉलम पर डेटा वन प्रोवाइड कर देगा। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट? Okay, so by this example, this we have 16 addresses, each of which stores 8 data bits. Thus it is a 16 by 8. 16 by 8 इसको ऐसे पढ़ते हैं, 16 by 8 room, and its total capacity is 128 bit. So how much bit it can store is 128 bits it can be stored. Okay, or 16 bytes. So ROMs can be used as lookup tables. लुकअप टेबल आप समझ सकते हैं कि कोई चीज किसी टेबल में आप स्टोर कर दें, ठीक है, आप उसे स्टोर कर दें और उससे आप देख देख कर जब भी आपको उसकी जरूरत हो आप उसको देखें और उसे यूज कर लें फॉर कोड कन्वर्जन एंड लॉजिक फंक्शन। अच्छा, हम रोम्स के थ्रू लॉजिक फंक्शंस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे आप एडर है, मल्टीप्लेक्सर है, जो भी आप फंक्शन चाहें लॉजिक फंक्शंस भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन लॉजिक बाय यूजिंग द रोम्स। कोड कन्वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हैं। we'll see one example here is there. Okay, so what this example here you can see and you will understand this example quickly, and this is very good to know. Okay, so show a basic ROM similar to 1 in figure 1 programmed for a 4-bit binary to gray conversion. ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ये कहा गया कि 4-bit बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करना है। ठीक है, 4-बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करना है, उसके लिए आप एक रोम बनाइए। ठीक है, 4-बिट बाइनरी है और उसको हमें क्या 4-बिट ग्रे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ये अभी नहीं लग रहा है क्योंकि अभी हम हमारा पर्पस रोम को पढ़ने का, अभी हम रोम के एप्लीकेशंस नहीं देख रहे हैं। ठीक है, okay, I think I have to stop here for some reason. Okay, then we shall start from here after some in the next class.